All right, getting in news from Haryana of the actor turned comedian Kiku Sharda, who was earlier detained, given to understand as of now that he's been questioned once again. Vishal Monga joining us on the phone line. He was released on bail. What happens now? Why is he being questioned again, Vishal? See, the Dera followers have registered another case at Fatehbad. What we know is also that there could be a third case also that has not been confirmed by the police. But what we know is that the Fatehbad police is asking him to join the investigation so that his statement can be recorded, and then the next proceeding can take place. Whether they have any incriminating evidence against him, then there could be another arrest, or whether they themselves, really, the investigating officer has the power to decide that there is no evidence against him. So the decision would be taken after that. But indeed, he's being questioned in another case that has been registered at Fatehbad. ये कह रहा हूँ कि 23 साल जिसके लिए मैं तरस रहा था, वो आज़ादी है। उसके लिए मैंने हर चीज़ की, और वो दिन आज आ गया है आज़ादी का। और वो जो फीलिंग है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रज़े पे आया हूँ, कोई फरलो पे या पेरोल पे। और मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। कल रात को मैं सोया नहीं, ना मैंने 4 दिन से कुछ खाना भी खाया है। क्या बात है? और यही सोच के कि मैं ये गेट से बाहर जाऊंगा और मेरी फैमिली के साथ फिर जुड़ूंगा, और हमेशा के लिए मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। तो वो फीलिंग, वो एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ आई थिंक हर कैदी को ऐसा होता है। And breaking news, police sources now are telling Times Now that the neighbor has told the police that yesterday morning they encountered Pratyusha in the lift and she was spotted crying. And in fact, she told them that Rahul had ditched her. हम लोग में सीसी कैमरे में इतना देखा, राहुल के साथ एक बैग लेके लड़का आया। जैसे बैग लेके आया था, मतलब चाबी वाला रहेगा। और जब कैमरे के लिफ्ट से बाहर गए तो 2 या 3 सेकंड में वो बॉडी लेके आया, उसके मुंह में हवा दे रहा था। बस इतना सीसी कैमरे में दिखा है। इसके पहले कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी। मारपीट किससे? उस लड़की ने क्या बोला था? हाँ, वो क्या हुआ था? उसके बारे में मतलब इनकी मारपीट नहीं हुई थी, दूसरी लड़की के बारे में इनकी मारपीट। वो दूसरी लड़की ने इनको मारा था। ये मैं फैन लेकर आई हूँ। जब स्टार्टिंग में आपको मैं आज बता दूं कि मैं अथर रोड जेल के बाहर गई थी इतने सारे कंप्यूटर देने। आप सब लोगों ने देखा, सालों पहले मैं गई थी या नहीं गई थी? बताइए प्लीज। मैं गई थी ताकि वहां पे जितने भी कैदी हैं उनका भविष्य सुधरे। मैंने हर वक्त कदम उठाया है, तो मुझे ड्रामे का नाम दिया गया। मैं एक इनोसेंट लड़की हूं, आपके देश की बेटी हूं। मैं भी लोगों का भला करना चाहती हूं। ये जो बड़े बड़े नेता बैठे, सिर्फ वो ही देश का भला नहीं कर सकते। हाँ, मेरे हाथ में पावर नहीं है, बगैर पावर के भी मैं देश का भला करना चाहती हूं, समाज सेवा करना चाहती हूं। तो मैं न्यूज चैनलों में आके मैंने अपनी आवाज खोली, तब जाके लोग आके डिबेट करते हैं, बातें करते हैं। इसीलिए आज ये फैन मैं इसलिए लेकर आई हूं कि मैं चाहती हूं कि भारत माता की जय बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है। घर घर से ऐसे फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है।
Well, the Kangana-Hrithik fight is only getting messier, with her lawyer now writing to the Mumbai police chief demanding Hrithik Roshan's arrest. So after slapping legal notices at each other and having a public spat, back and forth charges and counter charges flying between the two actors, now we understand that Kangana Ranaut's lawyer has written to the Mumbai police chief demanding Hrithik Roshan's arrest. Now what he's gone on to say is that Hrithik Roshan during his association with her are being malafidely and mischievously misused the photographs and the confidential emails from that point of time with the criminal intention of damaging the client's reputation. Two legends India looks up to, Sachin Tendulkar and Lata Mangeshkar, mocked and ridiculed by Tanmay Bhatt in a video where Tanmay Bhatt has poked fun at the legends. But Bollywood and also the political fraternity have not taken kindly to this. They have hit out at Tanmay, the MNS and the BJP filing a complaint. The entire matter now being handed over to the special branch. Many political voices calling for legal action, whereas others saying that what has been put out is distasteful and disrespectful and he owes an unconditional apology. Because Pailan Nirani has been behaving like an oligarch for a very long time, and it's not now, it's been going on for 2 years, and he wants to implement his morality on all our filmmakers, and he's been functioning like that. Anybody who disagrees with him is not allowed in, including in his own censor committee. Like when a revising committee of people who have unthinking mind, who can disagree with Pailan Nirani, are never called for revising committee screenings. Everybody who listens to his diktat and his interpretation of the law or of the censorship rules are the ones who come and watch your film. He just wants to stay in control of your life. He's been playing God in all the filmmakers' life, and any filmmaker who does not play along with him and refuse and go to the tribunal are his enemies. Irfan Khan has said that there is no need for introspection on the practice of sacrifice. There is a need, beg your pardon, there is a clear need for introspection on the practice of sacrifice and other rituals. Muslim clerics have questioned Irfan over his statement and demanded an apology. कुर्बानी का हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जो भी जितने रिचुअल्स हैं, जितने फेस्टिवल्स हैं, हम उनका असल मतलब भूल गए। हमने उनको जो है तमाशा बना दिया है। कुर्बानी एक बहुत अहम फेस्टिवल है, बहुत ये इसमें कुर्बानी एक वर्ड है जिसको हम सैक्रिफाइस, वो सैक्रिफाइस करना है उसमें आपको। बकरी वो प्राइम सोर्स था खाने का, बहुत से लोग थे उनको खाना नहीं मिलता था, तो ये एक तरह से आपको अपनी कोई अजीज चीज कुर्बान करना और दूसरा लोगों में बांटना। तो आज के दौर में अगर आप बाजार से 2 बकरे खरीद लाए और आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो कुर्बानी कहाँ हुई? और ये सोचने की बात है, एक कॉमन सेंस है। हर आदमी अगर अपने जो आदमी कुर्बानी करता है, हर आदमी अपने दिल से पूछे कि किसी और की जान लेने से उसको कैसे सवाब मिल जाएगा, उसको पुण्य कैसे पहुंचेगा। आप जान किसी और की ले रहे हो, आप कुर्बान उसको कर रहे हो, तो आपको पुण्य कैसे मिलेगा भाई? ये कॉमन सेंस है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे जितने फेस्टिवल्स हैं, जितने रिचुअल्स हैं, उनको हमें गौर से उनका मतलब समझना चाहिए कि वो किस लिए बनाए गए थे। इसलिए रिवाइव होना बहुत जरूरी है। और आज के दौर में अगर हम इसको दोबारा उसका सही मतलब नहीं समझते हैं, तो ये सिर्फ जो है उसका गलत इस्तेमाल होता है चीजों। And breaking news, these are visuals now that we are getting to you from Mumbai, where these are protests over Kapil Sharma's bribe claim. Now, the BJP MLA Ram Kadame has asked the comedian to name the official who allegedly sought bribes. So this is essentially how the story is developing. There has been a lot of pressure, remember, on Kapil Sharma essentially to name and shame that particular official who sought bribe from him. We do know that the BMC also, remember, had put forward the same demand there. Now, this is the BJP MLA from Ghatkopar. Now, Ram Kadam, who we are given to understand, has also asked the comedian to name this particular official who sought the bribe. पहली बात तो मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसे हुआ है कि सलमान खान की ट्यूबलाइट फ्लिकर होती है। और एक बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमारे जो जवान हैं
जो सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं ना, लेकिन वो वहां पे वो मर रहे हैं, उनको गोलियां लग रही है, और उनको जो गोलियां लग रही है वो फिल्मी गोलियां नहीं है, वो असली गोलियां हैं। सलमान खान को जब लगती है बाद में खड़ा हो जाता है वो। और कल ऐसे पकड़ो, ये आर्टिस्ट, मैं भी एक आर्टिस्ट हूं, ये आर्टिस्ट कोई आसमान से थोड़ी गिरते हैं। और जब वो पाकिस्तानी कलाकार जो है, जिनको हम लोगों ने एक 48 आवर्स की अल्टीमेटम दी थी, उसके बाद सारे के सारे चले गए, उनको पूछा गया कि आप पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसको आप कंडेम करते हो क्या? वो बोले नहीं करेंगे, हम लोग पाकिस्तानी हैं। वो आर्टिस्ट वो बोल सकते हैं, हमारे आर्टिस्ट ही क्यों जा रहे हैं वहां पे? और ये संबंध जो है, एक आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती वगैरह वगैरह। कल पकड़ लो ऐसे कि हमारे सोल्जर जो है, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन्होंने अगर उनके शस्त्र है वो नीचे रख दिए और उन्होंने कहा कि चलो हम भी आते हैं गुलाम अली की कॉन्सर्ट देखने, चलेगा? यातला विषय मला असं वाटतं, या तिन्ही चित्रपटांचा मागे जेव्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट झाली त्याच वेळेला तो विषय संपला होता की याच्या पुढे ते घेणार नाही। आत्ताचा विषय असा होता की मध्यंतरी काहीतरी बातम्या आल्या, काहीतरी ते माहिरा खानला प्रमोशनसाठी काहीतरी फिरवणार आहे, तर असली कुठची गोष्ट होणार नाहीये, एवढं फक्त सांगायला। म्हणजे माहिरा खान भारतात येणार नाही आणि म्हणजे त्यामुळे फिल्म प्रमोशनलाही नसेल, फिल्म प्रमोशनलाही नसेल। रितेश सिंघांनी असा दावा केला की तिच्याकडे सिनेमा नाही, ते काहीतरी त्यांच्या बोलण्यात काहीतरी ते मीडियाने उचललं, परंतु आता त्याच्यासाठीच ते आले होते आता, आणि तेच सांगत होते की असला कुठचाही विचार आमच्या मनात नाही आणि असली कुठची ते प्रमोशनसाठी फिरवणार नाही। जोपर्यंत या दोन देशांमधले संबंध सुधारत नाहीत तोपर्यंत आमचा कुठचाही विचार नाही आणि आम्हाला असली गोष्ट करायची पण नाही आणि याच्या पुढे आम्ही कोणाला घेणार पण नाही।